Now, so vegetative propagation already we have discussed is a type of asexual reproduction in which complete new plant is produced from any vegetative part of the plant. Okay, so we can produce a new plant from any vegetative part. I have already told you that plants having two different parts, the vegetative part and the sexual part. Okay, vegetative part includes the root, stem and leaves. Okay, root, stem and leaves are the vegetative part of the plants and the flower is the sexual part of the plant. Okay, now, so vegetative propagation means ki when we produce a new plant from the root, from the stem and from the leaves, then it is called as a vegetative propagation other than the sexual part, okay, other than the flower. And the new plants are genetically identical to the original parent plant. Okay, so already I have told you कि जो new plant होगा genetically identical होगा parent plant से, क्योंकि only one parent is involved. There is no sexual reproduction, there is no other parent, एक ही parent है. So offsprings or new generation having the genotype of only one parent. Okay, एक ही parent का genotype होगा, genes different नहीं होंगे. So that's why there is no variation. The new plant are genetically identical to the original parent plant. ओके, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम हॉर्टिकल्चर में, जहाँ हम फ्रूट फ्लावर्स वगैरह ग्रो करते हैं, वहाँ हम इसको यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स विथ पर्टिकुलरली डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, डिजायरेबल का मीन्स कि व्हेन वी आर हैविंग टू प्लांट्स, जब हमारे पास प्लांट्स हैं जिनके डिजायरेबल मतलब कि जिनमें अच्छे करेक्टर्स होते हैं, उनको हम स्पेसिफिकली, क्योंकि बड़े सारे प्लांट्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं प्लांट्स की डिफरेंट, सम हैविंग द डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, कुछ में अच्छे करेक्टर्स नहीं होते. सो इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वी आर यूजिंग द प्लांट्स हैविंग द डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स. ओके, ओके. रक्षिता, आई हैव जस्ट टोल्ड कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वी प्रोड्यूस द न्यू प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट, स्टेम और लीव्स. बस दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि प्लांट्स में दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और सेक्चुअल पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट इज द रूट, स्टेम और लीव्स. सो वेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द स्टेम एंड फ्रॉम द लीव्स, दैट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव पार्ट. जिसको आप दैट कम्स अंडर द असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारा सेक्चुअल पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व, दैट इज द फ्लोर. ओके, सो दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली. Now, so today we will discuss about the natural and artificial means of vegetative propagation. Okay, firstly we are having the natural methods of vegetative propagation. Okay, that natural method means ki when we grow the plant from the root, stem and the leaf. Okay, that is the natural methods. So examples are given there. Now you have to remember this thing कि this topic is very very simple. Okay, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करना है कि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, रूट से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टेम से, लीव से. But in the last class also I have told you that you have to learn more and more examples, that in which plants we are using the root for producing new plant, we are using the stem for producing new plant. Okay, so इसमें examples are more important. Topic is very very simple, इसमें कुछ नहीं है, but examples you must know the examples कि कौन से plants में हम roots use कर रहे हैं, कौन से plants में हम stem use कर रहे हैं, in which plant we are using the leaves. Okay, now so first of all, root. These are certain tuberous root that grow in clusters and produce buds, adventitious buds on them. If the cluster of swollen roots get separated, they grow into a new plant. You can see in the picture, these are the swollen roots. ठीक है, जैसे example है sweet potato and the dahlia are the two examples of the plants that we grow from the roots. Okay, अब ये देखो swollen roots हैं, ठीक है, swollen cluster of swollen roots get separated. अगर हम इन swollen roots को, इनका cluster है, okay, roots are in clusters और each having the capacity to originate into a new plant. ये clusters हैं, इन clusters को जो आप separate करोगे, so then we are able to grow the new plant from the roots. Okay, this is very simple, but you have to learn the example ki sweet potato and dahlia and asparagus are common examples in which we produce new plant from the roots. Okay, then we are having the stem. Stems are of many type. First of all, you must know कि stem क्या होती है. Stem क्या है, जिसमें you know कि stem forms the root system, sorry, shoot system. Stem जो है वो it forms the shoot system. And stem जो है, what is the stem? Stem means the part of the plant having the nodes and internodes. ठीक है, plants के part में जहाँ पे nodes और internodes मिलेंगे, that is called as the stem. Okay, now just try to understand. Suppose this is the stem. Okay, this is the shoot system, or you can say stem. Up stem में you can say branches arise from the stem. This is the branches. Okay, these are the branches. Now
द स्पेस बिटवीन द टू ब्रांचेस इज कॉल्ड एज द इंटरनोड. ये स्पेस को आप बोलते हो, इस स्पेस को आप क्या बोलते हो, इंटरनोड. ओके. एंड द एरिया फ्रॉम वेयर द स्टेम फ्रॉम द ब्रांच अराइज, जहां से ब्रांच अराइज हो रही है उसको आप बोलते हो नोड. okay, node and internode, just try to understand what is the internode. Internode means the area between the two branches, दो branches के बीच में जो area होता है, that area is called as the internode. and the area from where the branch arise उसको आप बोलते हो node. okay, these are the nodes and internodes. so any part of the plant जहाँ पे आपको nodes और internodes मिलते हैं, that is called as the stem. okay, now stem of various plants takes part in vegetative propagation that include bulbs. Onion के जो bulb होते हैं उससे हम new plants originate कर सकते हैं. runners जो grasses हैं, I will show you with the help of diagram, but just firstly read the name. okay, पहले name read कर लो, then I will show you the diagrams. okay, runners. then you are having the offset जो है pistia, echinoria. then you have a rhizome जिसमें हम ginger, जिसमें rhizome is also a stem. then corms, colocasia. okay, then phyloclads, opentia जो आपका cactus होता है. then potato में tubers होते हैं. okay, so onion में we can grow plant with the help of the bulbs. grasses में we can grow help with the runners, grasses में runners होते हैं. पिस्टिया में ऑफसेट जो है वो होंगे पिस्टिया में, एक्नोरिया में, राइजोम्स जो है जिंजर. देन कॉम्स, कॉम्स किस में होती है, कोलोकेशिया में. ओके, कॉम्स से हम न्यू प्लांट ओरिजिनेट करते हैं. देन फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड इज इन द ओपेंशिया, ओपेंशिया मीन्स योर प्लांट इज कैक्टस. ठीक है. all are modified stems. okay, what is the meaning of modified stem? okay, usually you know कि what is the function of the stem. stem जो है plant का aerial part होता है. from the stem usually you can say कि what is the function of the stem. stem is the aerial part of the plant that can give rise to branches, that can give rise to leaves. okay, and leaves help in the process of photosynthesis. that is a normal function of the stem. but when we say कि that modified stem, modified stem का मतलब होता है कि stem जो अपने normal function से, अपने नॉर्मल फंक्शन के साथ साथ कुछ डिफरेंट फंक्शन भी करती है, तो देन यू कैन से कि इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम. okay, so these all are the modified bulbs, offsets, runners, rhizomes, corms, phyloclads, tubers, all are the modified stems because they are this is the stem that are that we use to produce the new plant, जिसको हम यूज करें न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए आप उनको बोलते हो मॉडिफाइड स्टेम. okay, so whenever a stem is performing additional function other than its normal function, then it is called as the modified stem. okay, okay, now just look into the picture and try to understand. ये देखो, this is the onion bulb. you all have seen onion. ठीक है, onion में अब देखो bulbs होते हैं. देखो terminal buds हैं, axillary bud हैं, वहां पे क्या होते हैं, roots arise होते हैं. okay, just wait. no, just wait, I will show you. okay, now टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड. ठीक है, अब इसमें देखो यू आर हैविंग एडवेंटेशियस रूट्स डेवलप होते हैं, तो बल्ब जो है अनियन को आप ग्रो करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस बल्ब. ठीक है, इसको अभी आप स्टेम बोलते हो क्योंकि उसमें आपको दिस इज द स्टेम. ओके, बेसिकली अनियन में क्या प्रेजेंट, अनियन जो है उसको हम ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ बल्ब, मतलब अनियन की जो स्टेम है उसको आप बल्ब बोल रहे हो. ओके, देन यू आर हैविंग द रनर्स. रनर्स क्या होते हैं, ग्रासेस में. यू कैन सी रनर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में होते हैं. यू कैन सी द प्लांट, द रूट्स, देन अगेन यहाँ से जो है न्यू प्लांट अराइज होगा, इसमें रूट्स हैं. ओके, तो दीज आर ऑल द एडवेंटेशियस रूट्स. तो इससे हम जो है इन्हीं रूट से हम न्यू प्लांट को ओरिजिनेट कर सकते हैं, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स वाई रनर इज ऑल्सो द रूट्स, the part of the plant that help in the production of new plant. Then you are having the ginger, rhizome. Rhizome is also okay, so don't think कि ये fruit तो है ही है, they are also the fruit, मतलब ये इनके अंदर fruit भी stored है. okay, इसको fruit, जैसे आप potato है तो potato के अंदर starch stored है. okay, तो इसको आप ये storage का काम भी कर रहे हैं, and they are also helping in the production of new plants. that's why they are the modified. okay, they are performing more two functions. you know कि जिंजर को हम खाने में भी यूज करते हैं, तो ये फूड भी स्टोर कर रहे हैं. ओके, देखो ये है, तो ये फूड भी स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर, एंड सेकेंडली दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो. ओके, सो ये देखो इसमें नोड्स हैं, ये स्केल्स हैं, तो हम जिंजर जो है उसको, राइजोम को जो है वो भी हम ग्रो कर सकते हैं विद द, इसकी हेल्प से हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. देन
यू आर हैविंग द पोटैटो में भी आपको जो आईज होती हैं, यू ऑल हैव सीन कि पोटैटो में ये जो आईज यहाँ बर्ड्स होते हैं ना, इसको बर्ड्स बोलते हैं। तो पोटैटो ट्यूबर से जो है, इन ट्यूबर्स को, इन्हीं को हम यहाँ से काट के हम इसको सॉइल में लगाते हैं, तो इससे फिर जो नए हमारा प्लांट है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द स्टेम। बल्ब इज ऑल्सो स्टेम, रनर, राइजोम, बट दीज आर नॉट द सिंपल स्टेम, दीज आर द मॉडिफाइड stems. Okay, so you can see stem growing, running horizontally along soil surface. Okay, so these all are the examples. You have to learn the examples. Okay, then you are having the next is the, that is the leaves. Okay, leaves may, okay, in some plants such as bryophyllum, leaves help in vegetative propagation. In bryophyllum, plants develop along the leaf margin. Okay, so जो bryophyllum pinnatum plant है, maybe you have seen that plant. Okay, bryophyllum pinnatum, leaves help in vegetative propagation. In plants में leaves में छोटे छोटे plants develop होते हैं. In bryophyllum, plantlets develop along the leaf margin. When these plantlets detach and fall on the ground, they grow into independent plants. Okay, so just wait, I will show you the example. Okay, plantlets develop along the margin of a bryophyllum leaf. Okay, bryophyllum leaf में आपको plantlet, छोटे छोटे leaves के margin में आपको छोटे छोटे plantlets दिखेंगे, और यही plantlets जो हैं ये help करते हैं. You can see कि उसने कहा है these plantlets detach and fall on the ground, they grow into independent plant. Okay, so example जो है इसकी important example है, that is a bryophyllum pinnatum. Okay, bryophyllum is a scientific name of the plant. Okay, and we can use the leaves for the production of new plant. Okay, so this is all about the artificial method of vegetative propagation. This is very simple कि हम roots में stems को, leaves को use कर रहे हैं new plant की production के लिए. So this is the not artificial, sorry, this is the natural method of vegetative propagation. Okay, then you are having the artificial method of vegetative propagation. उसने क्या है, man has used the features of vegetative propagation to develop some artificial methods for quick multiplication of plants. ठीक है, यूजली जो हम प्लांट्स लगाते हैं दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, जो हम ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीड्स, या ऐसे भी आप प्लांट्स लगाओगे, बट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम जल्दी से प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इंक्लूड कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग. ओके, नाउ first of all, what is cutting? A process in which vegetative portion from a plant is taken and rooted in the soil. ठीक है, हम प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पोर्शन लेंगे, दैट इज, इसमें कटिंग में आप स्टेम ले रहे हो. फॉर दिस मेथड, those are asking question, just wait, I will. Okay, now for this method, stems having nodes and lateral buds are used. उसने क्या, कटिंग में हम vegetative portion from the plant is taken and rooted in the soil. For this method, stems having nodes and lateral buds are used. हम stems में nodes और lateral buds को use करते हैं. अब स्टेम जो है, कोई भी आप स्टेम नहीं लोगे, स्टेम में आप वही पोर्शन लोगे जहां पे आप देखोगे नोड्स प्रेजेंट होंगे, नोड्स प्रेजेंट होंगे जहां पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, ए बर्ड इज अ अंडरडेवलप्ड शूट कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव स्केल्स और यंग लीव्स. ओके, just wait. Okay, now a process in which vegetative propagation from plant is taken and rooted in the soil is called cutting. अब देखो बेसिकली हम इसमें स्टेम लेते हैं, बट स्टेम यू हैव टू टेक इन अ पर्टिकुलर पोर्शन की जहाँ पे आपको बर्ड्स दिखे. ठीक है, स्टेम में नोड्स और इंटरनोड होते हैं. अब उसके क्या, स्टेम हैविंग नोड एंड लेटरल बर्ड्स आर यूज्ड. नोड आपको पता चल गया कहाँ है, नोड क्या है, जहाँ से ब्रांच अराइज होती है. तो आप स्टेम को उसी पोर्शन से काटोगे जहाँ पे नोड होगी और जहाँ पे आपको लेटरल बर्ड्स दिखेंगे. यू कैन सी इन योर होम ऑल्सो कि अपने घर में आप बड़े सारे प्लांट्स देखोगे, स्टेम में आप उसको देख सकते हो कि स्टेम में छोटे छोटे बर्ड्स अराइज होते हैं. ओके, और स्पेसिफिकली यू हैव टू कट दैट पार्ट ओनली फ्रॉम द नोड्स. A bud is an underdeveloped shoot
कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव स्केल्स और यंग लीव्स, ठीक है। बड क्या होता है, अंडर डेवलप्ड शूट, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट जो शूट बनता है लेकिन अभी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता। When planted in the moist soil, the stem cutting first give rise to root and later on grows into a new plant. जब आप इसको moist soil में grow करते हो, means जिसमें proper moisture content होगा, water present होगा, तो stem give rise to root and later on grows into a new plant. और किस plants को आप use करते हो, that is the sugar cane, grapes, pineapple, china rose और commonly grown by this method. इन सबको हम इसी method से grow करते हैं. Okay, so this is the cutting. Remember the examples. Then next you are having the grafting. उसमें क्या है, a method of vegetative propagation in which stem of a plant called squine is attached to another plant having root called stalk is known as the grafting. grafting में basically हम two different plants को, ठीक है, basically two different तो नहीं होते हैं, different means कि जैसे आप एक plant लेते हो उसके आप species जो है वो different हो सकती है, ठीक है। so उसमें क्या है, दो plants ले रहे हो, एक की stalk ले रहे हो, एक का squine use कर रहे हो. Okay, yes, voice is audible now. Okay, stalk and squamous, so this is done in such a way that the vascular tissue combine. Such a combination of vascular tissue of stalk and squine allows growth of the grafted plant, that is squine. अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि दो प्लांट्स लेंगे, एक का जिसका आप रूट सिस्टम यूज करते हो उसको आप स्टॉक बोलते हो, जिसका आप शूट सिस्टम यूज करोगे उसको आप स्क्वाइन बोलते हो. ओके, सो इन दिस वे वी आर प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट. बट जस्ट रिमेंबर कि वेन एवर वी आर अटैचिंग, जब उसको अटैच कर रहे हो दोनों के प्लांट को, उसने कहा कि दिस इज डन इन सच अ वे दैट द वेस्कुलर टिश्यूज कंबाइन. व्हाट आर द वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ जाइलम एंड द फिलोम. अब जिसका रूट सिस्टम होगा उसमें भी देखो, यू कैन सी इन द पिक्चर, अगर रूट सिस्टम यूज करें तो रूट सिस्टम भी थोड़ी सी स्टेम होगी. अब स्टेम है तो स्टेम में डेफिनेटली देयर इज अ वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फिलोम होंगे. तो दोनों के मेक, जब आप दोनों स्टेम्स को कंबाइन करते हो तो वी विल मेक श्योर कि उसके जो जाइलम और फिलोम है वो कंबाइन करने चाहिए, ठीक है. इसीलिए हर कोई जो है वो लगा नहीं सकता, ये पर्टिकुलर जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं वही लगा सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वेस्कुलर टिश्यूज जो है जाइलम और फिलोम जो कैसे कंबाइन करेंगे. ओके, सो व्हेन ओनली जब जाइलम और फिलोम प्रॉपरली कंबाइन करेंगे, प्रॉपर कॉलम यू कैन सी कि उसने कहा सच अ कॉम्बिनेशन वेस्कुलर स्टॉक एंड स्क्वाइन अलोज टुगेदर ऑफ द ग्राफ्टेड पार्ट. अगर उसके वेस्कुलर टिश्यू कंबाइन नहीं करेंगे, इसका जाइलम अलग होगा, इसका जाइलम अलग होगा, तो प्रॉपर कॉलम नहीं बनेगी, तो वाटर कॉलम मेंटेन नहीं होगी, वाटर नीचे से एब्जॉर्ब होगा पर ऊपर तक पहुंचेगा नहीं. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट कि वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो प्रॉपरली कंबाइन करें. फॉर ग्राफ्टिंग बोथ स्कॉन एंड स्क्वाइन कट ओब्लिकली, ठीक है, हम उसको ओब्लिकली ग्रो करते हैं, ओब्लिकली ओब्लिकली कट देते हैं, कट इन दिस वे. ओके, ऐसे करके इन दिस वे, सो दैट सपोज दिस इज अ स्टेम, तो आप इसको ओब्लीक कर दोगे. ये रूट सिस्टम है तो इसको भी आप ओब्लीक, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कट नहीं देते हो, स्लांट जैसे होता है ना वैसे करके ओब्लीक कट देते हो. The vascular tissue of both and stalk and spine fuse and form a continuous vascular column. Continuous means कि vascular bundle जो है दोनों के xylem, स्टॉक और स्टेम का xylem भी मिलना चाहिए, स्टॉक और स्क्वाइन का फिलोम भी मिलना चाहिए. Only then the food and water will transport. Okay. Grafting is mostly used to blend the characteristics of two plant. Okay, दो different plant के दो की characteristics को हम ब्लेंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए, फिर हमें एक के अंदर एक डिजायरेबल करेक्टर मिलता है, ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं. इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस and grafting is successful only in species that are closely related. but just remember कि grafting हम usually different plants, जैसे हम ये नहीं कर रहे मैंगो में या ऑरेंज में ऐसे करके नहीं, हम ऐसे कर रहे हैं मैंगो की डिफरेंट स्पीसीज होगी, ऑरेंज की डिफरेंट स्पीसीज होगी, जैसे सिट्रस है, लीची है, गावा है, उनकी डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कर रहे हैं. ओके, वन एग्जांपल आई वांट टू गिव यू, जैसे आपका रोज है. ओके, यू ऑल हैव सीन द रोज, तो रोज की डिफरेंट वेराइटीज होती हैं. एक आपका जो होता है जो हम वाइल्ड बाहर लगा होता है, एक हमारा घरों में रोज होता है. सो द रोज विच वी जो बाहर ग्रो होता है, ठीक है, वो वाइल्ड रोज होता है, तो उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट वो होता है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर ग्रो कर रहा है, वो किसी भी कंडीशन में ग्रो कर जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन जो हमने घर में पर्टिकुलर रोज लगाया होता है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होता, बट वो ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, वो अच्छा फ्लावर होता है. बाहर का रोज जो होगा वो इतना सुंदर नहीं होगा. तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स को ब्लेंड कर लेंगे. ब्लेंड का मतलब करने का मतलब है कि दोनों की, अगर सपोज हम दोनों की क्राफ्टिंग करते हैं, तो then what will we get? Okay, we will get a plant that is disease resistant also and that is beautiful also, जो सुंदर भी होगा और disease resistant भी होगा. ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाइल्ड प्लांट जो वाइल्ड रोज होगा वो सुंदर नहीं होगा बट वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा.
क्योंकि वो वाइल्ड में ग्रो कर रहा है, उसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, फिर भी वो ग्रो करते जा रहा है। बट जो हम घर में लगाते हैं दैट इज हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स कि वो जो है उसको उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट की करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी, उसको प्रॉपर कंडीशंस मिल रही हैं इसलिए वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होगा, जैसे उसको कोई डिजीज लगेगी वो खत्म हो जाएगा। सो व्हेन वी ब्लेंड बोथ द करेक्टरिस्टिक्स, दोनों के दोनों प्लांट्स को आप ब्लेंड करोगे, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स को मिक्स करोगे, तो देन वी विल गेट अ प्लांट, जो हमें प्लांट मिलेगा, जो न्यू रोज मिलेगा, वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा और वो ब्यूटीफुल भी होगा, ओके, अच्छा सुंदर फ्लावर भी होगा। Okay, so we can grow these plants, apple, pear, mango, but just remember कि grafting is successful only in species that are closely related species के बीच में ही होता है, जो closely related होती हैं। Okay, so this is the example. Now this is the scoin and this one is the stalk। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, स्कॉइन और स्टॉक को आप ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन करने के बाद आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप मॉस लगा देते हो। मॉस यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th में, आपने पढ़ा होगा, जो ब्रायोफाइटा होता है, मॉसेस, ठीक है, लीव्स वाले जो है उसको हम कवर कर देते हैं, क्योंकि मॉस जो प्लांट होता है, ओके, ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। मॉस इज द प्लांट हैविंग द कैपेसिटी टू गेन मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, वो इन्वायरमेंट से, क्योंकि उन प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि ब्रायोफाइटा वो प्लांट हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं, जाइलम और फ्लोम नहीं होते हैं। ओके, सो दे आर हैविंग द कैपेसिटी, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर गेन करते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ से बांध देंगे, उसके ऊपर हम मॉस लगा देंगे ऊपर, सो प्लांट को डायरेक्टली जो है वाटर मिलता रहेगा। ओके, just wait, I will give you the answer of your question. Okay, okay Prachi, okay, okay, just see this. Okay, so this is the grafting. Next we are having the now this is the difference with squine and stalk, जो already आपने देखी है। Squine is the upper part of the plant which is grafted. Squine means जो shoot system बनाता है, stalk means जो उसका is a lower part on which grafting is done. Okay, नाउ अब देखो, जो स्टॉक है वो प्लांट वहीं पे है, शूट सिस्टम उसको ऑलरेडी, उसको हम यूज काट, मतलब उसको हम नहीं वहां से उतार रहे हैं। ठीक है, स्कॉइन जो है, जो हम सेकंड प्लांट है, उसको हम कट करके उसके ऊपर लगा रहे हैं। ओके, सो स्टॉक इज द लोअर पार्ट ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग मीन्स जिसके ऊपर हम स्टेम किसी और प्लांट की लगाते हैं। Then you are having squine, it bears shoot system having desired traits। squine में है जिसमें shoot system होता है, जिसमें desired traits होंगे। desired means कि जो उनके important characters के लिए हम उसी का important characters हैं, तभी तो हम उसकी stem को use कर रहे हैं। And stalk contain root system। What is the function of squine? It produces high quality fruits and flowers। ये high quality के fruits और flower produce करता है। It is used for support, supplying adequate water and minerals। Okay, now next you are having the layering। अब उसने क्या है, a method of vegetative propagation in which a branch of the plant is made to bend towards the ground and is covered with moist soil is called layering। अब layering में क्या होता है कि layering basically it is of two type, but firstly we will discuss the first type। this is the first type, that is the mound layering। okay, now इसमें देखो, इसमें क्या है कि प्लांट लास्ट जो पार्ट होती है उसका मेथड इन विच ब्रांच ऑफ द प्लांट इज मेड टू बेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड। यू कैन सी इन द डायग्राम कि वी कैन बेंड दिस ब्रांच, ये जो लास्ट वाली ब्रांच है उसको आप ग्राउंड की तरफ बेंड कर रहे हो। ठीक है, इसको बेंड करोगे आफ्टर सम टाइम एंड इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल। इसको बेंड करके इसको किससे कवर कर दोगे, मॉइस्ट सॉइल से। After some time, adventitious root develop where a node touches the soil and shoot or new plantlets develop from the lateral meristem। नाउ आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि जब आपने इसको बेंड किया, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि बेंड करके आपने इसके स्टेम पे थोड़ा सा क्या कर देना है, इसको सॉइल से कवर कर देना है। आफ्टर सम डेज यू विल सी दैट शूट और न्यू, उसने कहा न्यू प्लांटलेट्स जो है डेवलप फ्रॉम द लेटरल मेरिस्टम। इसमें छोटे छोटे जो एडवेंटेजेस रूट्स जो है डेवलप हो जाएंगे। These new plants gradually anchor themselves in the soil
दे कैन बी डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय कटिंग। अब इसको हम पेरेंट प्लांट से, यहाँ से हम इसको कट दे के पेरेंट प्लांट से डिटैच कर सकते हैं। एंड कैन बी ग्रोन एज इंडिपेंडेंट प्लांट, और इसको हम एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। मैनी प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, एप्पल, जैस्मिन, लेमन आर प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड। ओके, सो ये जो लेयरिंग है, इस लेयरिंग को हम उन्हीं प्लांट्स में कर सकते हैं जिनकी ब्रांचेस जो फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होंगी, सो यू कैन इजिली बेंड द ब्रांच। ओके, सो हम इजिली ब्रांच को बेंड करेंगे, उसको सॉइल में डाल देंगे, वी कैन कवर द ब्रांच विद द सॉइल। सो आफ्टर सम डेज यू विल सी दैट advantageous roots develop, and after that you will detach the plant, you can cut the plant from the parent plant and grow in somewhere else, कहीं और उसको आप ग्रो कर दोगे। ओके, सो दिस इज द लेयरिंग, दिस इज द सिंपल लेयरिंग जिसको आप बोलते हो। देन सेकंड इंपॉर्टेंट वन इज द एयर लेयरिंग। ओके, नाउ एक तो आपकी माउंट लेयरिंग जो फर्स्ट हमने पढ़ी, दिस इज द एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है, मैनी ग्रीन हाउस प्लांट्स एंड इंडोर प्लांट्स हुज ब्रांचेस आर नॉट नियर द ग्राउंड, जिनकी ब्रांचेस जो है ग्राउंड के पास नहीं होती, और सेकेंडली ब्रांचेस जो फ्लेक्सिबल नहीं होती, उनमें हम वी आर नॉट यूजिंग द माउंट लेयरिंग। ओके, उसमें हम एयर लेयरिंग यूज करते हैं। Okay, in air layering, a ring of bark is removed from the base of a stem. Now you can see in the diagram, ये देखो ये stem है, this is a branch, ठीक है। Ring of bark is removed from the base of a stem. हम इसकी, just wait. Okay, so suppose this is the stem. Okay, स्टेम के ऊपर यू ऑल हैव सीन कि ब्राउन कलर की जो बाक होती है, आप बाक को यहाँ से, दिस इज अ स्टेम। ओके, कुछ पोर्शन से आप क्या करोगे, कुछ पोर्शन से आप बाग को, सपोज इतने पोर्शन से आप बाग को रिमूव कर देते हो, ठीक है। तो बाग को रिमूव करोगे ऊपर वाले, सिर्फ बाग को, यू कैन सी हियर, यू कैन रिमूव द बाग, ठीक है। बाग को रिमूव करके नाउ, okay, the cut is dusted with rooting powder containing synthetic auxin and then covered with moist sphagnum moss or cotton. अब जो कट है, ये जो कट है, इसको आप इसके ऊपर क्या डाल दोगे, जो आपने यहाँ पे कट दिया जहां से बाक रिमूव की, ओके, इन दैट पोर्शन यू विल पुट द सिंथेटिक हार्मोन, सिंथेटिक आपका ऑक्सिन जो है वहां पे डाल दोगे, ऑक्सिन का पाउडर डाल दोगे, एंड देन कवर्ड विद मॉइस्ट स्पेग्नम मॉस और कॉटन। स्पेग्नम मॉस क्या आपका, वही ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा को आप इसके ऊपर लगा दोगे, लीफी उसके जो लीव्स होते हैं उससे कवर कर दोगे पूरा, एंड इनक्लोज्ड इन ए पॉलिथीन बैग। ओके, पहले आपने इसमें हार्मोन डाला, हार्मोन विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट, वो रूट की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सेकेंडली फिर इसको आप कवर कर दो किससे, मॉस से। जब मॉस से कवर करोगे तो मॉस जो है वो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर गेन करेगा, वाटर गेन करेगा। Moss or cotton is kept moist with water after regular interval. After some time the root starts appearing, ठीक है। आपने बाग को काटा, ऑक्सिन डाल दिया, ऑक्सिन का पाउडर डाल दिया, उसको फिर मॉस से कवर कर दिया, ऊपर से फिर पॉलिथीन बैग से कवर कर दिया, एंड आफ्टर सम डेज यू विल सी कि यहाँ पे जो है वो रूट्स जो है वो डेवलप होंगे। द रूट स्टार्ट्स अपीयरिंग, नाउ दिस ब्रांच इज कट एंड प्लांटेड फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्लांट। अब इस ब्रांच को हम इस पोर्शन से यहाँ से काट के नई जगह लगा सकते हैं, ओके, एंड प्लांटेड फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्लांट। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर द स्टेम इज गिrdle, देखो ये स्टेम है, इसमें से हमने ये ब्राउन है, ये ब्राउन पोर्शन क्या है, बाग, बाग को रिमूव किया। नाउ इज कवर्ड विद डैम्प मॉस, को मॉस से कवर कर दोगे, पहले उसमें ऑक्सिन डाला, फिर मॉस से कवर किया, फिर उसमें पॉलिथीन या फिर एल्यूमिनियम शीट से उसको कवर कर दोगे। ओके, सो उसमें कवर इज रिमूव 2 to 3 months आफ्टर टाइंग और व्हेन द रूट्स कैन बी सीन। जब आप उसको लगेगा आपको कि रूट्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए तो तब आप उस कवर को रिमूव कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन कट द ब्रांच फ्रॉम दिस पोर्शन एंड यू कैन ग्रो अ न्यू प्लांट। Okay, so this is the layering. Next, we are having the advantages of vegetative propagation. Now we have studied the three types of artificial propagation. Okay, artificial vegetative propagation, that is the cutting, layering and the grafting. I hope it is clear to you. But now just remember कि you all have to learn कि cutting कौन से plants में होती है, layering में which plants में we can use the cutting, in which plants we can use the process of grafting में grafting use कर सकते हो, okay, and layering, grafting and cutting. Okay, now what are the advantages of vegetative propagation? इट इज चीपर, इजी एंड फास्टर मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। यू नो कि ये इसको आप, क्योंकि एक ही प्लांट से आप मतलब बड़े सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, ठीक है। चीपर है, इजियर है और फास्टर मेथड है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट विद फ्रूट्स एंड फ्लावर। अब देखो जैसे ग्राफ्टेड है तो ग्राफ्टेड में आप
आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी। एक ही प्लांट के अंदर दो करेक्टर्स मिलेंगे। ओके, सो बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट विद फ्रूट एंड फ्लावर्स हैविंग डिजायरेबल करेक्टर, जैसे फ्रूट का साइज अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, एरोमा जो है वो अच्छी होगी। इट इज अ बेस्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीडलेस प्लांट, जिन प्लांट्स में सीड नहीं होती, जैसे पाइन एप्पल, बनाना और शुगर केन है, उन प्लांट्स को हम इस मेथड से ग्रो कर सकते हैं। The plants raised by this method can produce flower and fruits faster than those produced from seeds. अब seed से जो हम plants produce करते हैं, seeds means the sexual reproduction. Whenever we are using the seed for growing a new plant, that is called as a sexual reproduction. But in this, we are not using the seeds. जिन plants में seeds नहीं होते, तो स्पेशली उसने कहा है कि जिन प्लांट्स में सीड, जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, उसको ग्रो करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली वी कैन यूज दिस मेथड टू ग्रो फास्टर, ठीक है, उसका प्लांट रेज बाय दिस मेथड कैन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट फास्टर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सीड्स में बड़ा टाइम लग जाता है, सीड्स ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो करता है, उसके बाद सीड जर्मिनेट करेगा, देन प्लांट ग्रो करेगा, फिर उस पर फ्लावरिंग होगी उसके बाद, एंड देन इट बिकम form the fruits. But in this case, this method is faster than the plants those are produced from seeds. बेटर ट्रेड और करेक्टर्स ऑफ पेरेंट प्लांट कैन बी प्रिजर्व्ड, और जो पेरेंट प्लांट के बेटर करेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको फ्लावर की, रोज की एग्जांपल दी कि डिजीज रेजिस्टेंट वाले करेक्टर है, तो उसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। The next topic, that is the sexual reproduction. Okay, so just wait, I will show your question, I will suppose जैसे रोज में आप लेते हो, तो कटिंग में आप स्टेम को काटोगे, लेकिन कहाँ से, जहाँ से नोड्स, जहाँ नोड्स प्रेजेंट होंगे, नोड्स आई हैव टोल्ड यू कि द स्पेस बिटवीन द टू, द एरिया फ्रॉम विद द ब्रांच अराइज इज कॉल्ड एज अ नोड, तो वहां नोड होनी चाहिए। ओके, और बर्ड्स होने चाहिए, तभी आप कटिंग प्रॉपरली कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ